Very good morning, students of class 10th. Here I am Poonam Prasad, your social science teacher, again with the topic of your political science, chapter number 6, political parties. Students, in our previous class, we came across with the topics like functions or the role of political parties, and political parties are somehow with correlation with representative democracy. Fine. Why it is so essential in democracy? So ultimately, just I am saying that whether the country is big or small, the country is old or new, it is developed or developing, we cannot imagine a world without, we can imagine a country without political parties, especially democratic government, a democratic country. Fine. So, in the progressive manner, here I am again with the topic. The topic today's topic is dealing with the number of political parties in India as well as in other democratic countries of the world. The students, in democracy, it is very much easy to have political parties. Fine. If we are talking about India, India is a large country and more than 750 political parties are registered with election commissions, but a very few of them are they are contenders in the elections. Fine. So a question arises that how many parties do we have a party system actually? Do we have in the worldwide, or we know in the worldwide? And on what basis the political parties are adopted in any country? Children, एक बहुत important question आता है कि जो चुनावी प्रथा है या जो हम कह सकते हैं एक जो सिस्टम है, वो सिस्टम को हम कैसे अपने कंट्री में अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि country can be big or small, it can be multicultural or single cultured, it is heterogeneous or homogeneous society is existing. So हम लोग बात कर सकते हैं कि जो adoption of political parties हैं, they are basically based on some important issues, children. That issues are on the basis of the nature, social and regional division of a country. These are the factors behind which we are saying that the adoption of political parties system are different from one country to another country. बेटा हर एक देश दूसरे देश से अलग है, तो अगर अलग है तो उसका पार्टी सिस्टम एक कैसे हो सकता है, तो उसका पार्टी सिस्टम भी क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, है ना. तो नेचर ऑफ सोसाइटी कैसा है, सोशल और रीजनल डिविजन्स कैसे हैं, सिस्टम ऑफ इलेक्शंस उस कंट्री का या पॉलिटिकल जो सिनेरियो ऑफ अ कंट्री है वो कैसा है. और अगर हम बात करें पॉलिटिकल हिस्ट्री की, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसी है. जैसे इन अ लार्ज कंट्री इंडिया, द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड, बट ओनली फ्यू आर गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शंस बिकॉज वी आर नॉट नीडिंग एज मच एज ऑफ द कंट्रीज. ऑल्दो क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरत है पार्टी सिस्टम्स की, ज़्यादा पार्टी क्यों है भारत में, क्योंकि भारत एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है. तो लार्ज नंबर ऑफ पॉलिसी जो पार्टीज़ हैं, दे आर टोटली मीनिंगलेस इन परफॉर्मिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि पॉलिसीज़ तो किसी एक पार्टी को बनाना है, और वही एक पार्टी जो पॉलिसीज़ बना रहा है, जो गवर्न कर रहा है या गवर्निंग है बॉडी, वो शक्तिशाली होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव, उनकी आइडियोलॉजीज़ इफेक्टिव होनी चाहिए, वो जनता के बारे में सोच सके, आंसरेबल है, अकाउंटेबल है और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. सो अगर इंडिया के हम पर्सपेक्टिव की बात करें तो इंडिया में जो दोनों लेवल्स पे काम करती हैं, एक क्षेत्रीय पार्टी कही जाती है जिसको हम लोग रीजनल पार्टीज़ कहते हैं, स्टेट पार्टीज़ कहते हैं, और एक राष्ट्रीय पार्टीज़ कही जाती है जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल पार्टीज़. और दे आर इफेक्टिवली डूइंग देयर यू कैन से परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस at both the levels of general as well as in the state elections. Students, अगर हमने जैसे पहले कहा कि पूरे वर्ल्ड वाइड में अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ अ कंट्री
or geographical or regional diversities or cultural diversities, the countries can be single, the countries can be two, और जिसको बाई पार्टी सिस्टम कहते हैं, and the party can be multi-party system, or the country can be multi-party system. So in present topic I am going to tell you about the single party system, two party system, multi-party system, along with their merits and demerits. So उनकी खामियां और उनके लाभ के बारे में मैं आपको बताऊंगी. Is that clear, students? So I have already told you about there are 750 political parties are registered with Election Commission of India, but only the few are the contenders in the elections, because we are having only because the some parties are only able to win the elections, they fight to win the elections and they form the government. So there is no need of having large number of political parties in a country, and it is totally meaningless. So let's we talk on the first party system, and the first party system is what we called it as single, इसको हम लोग मोनो भी कहते हैं, one party system. The students in a country like China, one party, the Communist Party, is allowed to run the government. Although there is a freedom to form political parties in China, children, but it does not happen practically because the electoral system in China does not permit free competition for power. Therefore, if we are talking about China's democratic scenario, it is not having true democracy. आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा about Chinese electoral politics. The one party system cannot be considered as very good because it is not providing any good options for the to the citizen of a country, and it is against the democratic tradition, children. क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमें क्या चाहिए, पावर शेयरिंग, और जिन कंट्री में अगर एक पार्टी रूल कर रही है तो वहाँ पे प्रॉपर पावर शेयरिंग होगा नहीं बेटा. सो वी नीड एटलीस्ट टू पार्टी सिस्टम टू कंप्लीट द इलेक्शंस और टू compete in the elections बेटा. So this will give a fair chance to both the contesting parties to come to the power, where in the bi-political party it means the two party system. So if we are talking about the merits, अगर हम merits की बात करें तो merits में जो सिंगल पार्टी सिस्टम है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो काम जो भी करेगा वो the ruler of a country is going to handle. Establishment होगा एक डेमोक्रेटिक एक स्टेबल गवर्नमेंट की, क्योंकि नो वन इज़ देयर टू क्रिटिसाइज द रूलिंग गवर्नमेंट, है ना. एंड इट हेल्प्स टू इन द प्रोग्रेस इन द कंट्री, क्योंकि वहाँ पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, डिलेइंग ऑफ या डिस्कशंस या जो टाइम लैप्सेस हो जाता है इन टर्म्स ऑफ डेलिबरेशंस एंड डिस्कशंस में, नेगोशिएशंस में, वो जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा कट हो जाएगा. तो चांसेस ऑफ प्रोग्रेस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली द वन इज़ देयर हु इज़ गोइंग टू हैंडल द सिचुएशन or to administer. Students, the country achieves remarkable economic progress as the government had no any sorts of conflicts among all the classes. Fine, and it is totally devoted for the entire energy because no one is going to question them. अगर जैसे हम कहें कि if I am only the whole soul of my family, तो this is my duty at all that I have to look each and every section of my home. उसी तरीके से अगर एक मॉनिटर है उसकी पूरी ड्यूटी बन जाती है तो वहाँ पे उसको कोई कहने वाला नहीं है. नो वन इज़ गोइंग टू, एक सिंपल शब्दों में कि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है ना. तो वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इन्हांस होती है, इकोनॉमिक और प्रोग्रेसिव होता है वो कंट्री टुवर्ड्स द इंक्रीज ऑफ द प्रोडक्शन इन अ कंट्री.
हम ये कह सकते हैं कि चाइना इज़ अ प्रोडक्टिव, चाइना इज़ अ जैसा कि अभी के हालात को अगर मैं छोड़ दूँ तो चाइना प्रोग्रेसिव स्टेट, एक डेवलप्ड कंट्री रहा है. The administration becomes efficient because all the powers are centralized in the hands of one leader, या concentrated in the hand of one leader. There is a unity sustained and disciplined in a country, क्योंकि जो no one is going to express their views against the government. There is no wastage of any sort of time, criticism and propaganda. So ultimately there we can say the one party system is having lots and lots of merits in its own term. और अगर हम देखें एक नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स में भी जहाँ पे सिर्फ एक ही लीडर है, एक ही रूलर है, चाहे वो मोनार्की हो या डिक्टेटर हो, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंपैरेटिवली डेमोक्रेटिक रिजीम से थोड़ा सा ज़्यादा होता है. ये पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग आउटकम्स में पढ़ेंगे. बट जैसा हम कहते हैं कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आर द फेसेस ऑफ द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन, उसी तरीके से हम बात करेंगे कि अगर मेरिट्स है तो डीमेरिट्स है, और डीमेरिट्स भी वन पार्टी सिस्टम की सबसे इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कि बेटा सबसे ज़्यादा नो ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर द वोटर्स चिल्ड्रन. हमें नहीं पता कि जो पार्टी काम कर रही है उससे और अच्छा कोई इफ़ेक्टिव काम हो सकता है या नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. Since there is only one party in the system, there is no freedom of expression, children. No opposition is there who is going to criticize. और इसीलिए हम कहते हैं in a one party system the democracy is gradually eroded and dictatorship is going to is converted into dictatorial form of government. हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी ख़त्म होती जा रही है और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि नो वन इज़ देयर टू क्वेश्चन देम. प्रॉपर पावर शेयरिंग इज़ नहीं है. और जिस कंट्री में वन पार्टी सिस्टम है तो वहाँ पे इलेक्शंस है नहीं, और इलेक्शंस कहने का मतलब एक इलेक्शन ट्रेडिशन नहीं होगा, और अल्टीमेटली ये जो ट्रू ट्रेडिशन या एथिक्स ऑफ द डेमोक्रेसी है वो अल्टीमेटली इट्स लूजन आउट, इट्स इरोडेड. द गवर्नमेंट बिकम्स एब्सोल्यूट. It means the powers are in the hand of one and the administration becomes irresponsible, children. Sometimes government autocratic हो जाएगी, और जिसके कारण क्या होगा, वो कंट्री ग्रेजुअली वो अपने डेवलपमेंट रेट को डिक्लाइन करेगी. इस वक्त का केस आप चाइना में देख सकते हैं. फाइन. And you people are know better than me. Students, the next important is the two-party system with the merits and demerits. Yes, two-party system, it is also called as bi-party system, है ना, dual भी कहते हैं, it means two. Also known as bi-party system means only the two major political parties are contesting the elections, although number of parties ज़्यादा होंगी, लेकिन two major parties are going to contest the elections and the winning procedure is there. For example, in USA, the Republicans and Democrats are the two important parties. If we are talking about the merits, of course, इसका merits high होगा as compared to mono. The government become again stable because the party which has a majority in the legislature, they form the government and other parties acted as a opposition. और ये दोनों चीज़ running an opposition is termed to be the part of a true democracy. It enhances the ethics of the political scenario. There is a system of elections, children. It becomes easier for the head of the state to decide which party should be invited to form the government. The government is in a two-party system is strong and it can produce good policies continuously. This is quite important, student.
दो पार्टी है, जैसे दो मॉनिटर्स आर देयर, दोनों एक दूसरे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस कंडीशन में, दो कहने का मतलब दो मॉनिटर्स अगर हम चूज़ करने जा रहे हैं, दो व्यक्तियों में, दो स्टूडेंट्स में, मॉनिटर ऑफ अ क्लास, नॉट मॉनिटर्स ऑफ द क्लास बट मॉनिटर ऑफ द क्लास, तो दोनों, जैसे एक स्टूडेंट है श्याम, वो अपना ही इज़ परफॉर्मिंग हिज मॉनिटरशिप वेरी इफेक्टिवली, बट students can know about, they may wanted to know कि रोहन और कैसा काम करेगा, तो लेट्स हम उसको नेक्स्ट टाइम उसको जीतने देंगे। दोनों में कंपैरिजन्स होगा, विच वन इज़ गोइंग, और जिसने अच्छा काम किया उसको जनता दोबारा चुनेगी। तो कहते ना कि कंपटीशन बढ़ जाता है, चांसेस ऑफ कंपटीशन, इलेक्टोरल कंपटीशन बिकम हाई व्हेन टू पार्टी सिस्टम एग्जिस्टेड। और अपोजिशन कैन अपोज द पॉलिसीज समटाइम्स, जो कि ज़रूरी नहीं है सिटीजन्स के लिए। और सबसे बड़ी बात, द सिटीजन्स हैव ऑप्शंस टू चूज़ विच वन इज़ द बेटर। बट येस चिल्ड्रन, द डीमेरिट्स आर ऑलवेज हियर। एक तो लिमिटेड चॉइस हो जाती है वोटर्स बिटवीन द टू, है ना। देयर इज़ अ चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द पार्टीज, अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेटिंग द country political scenario. The majority party supports the cabinet. The prime minister has a special influence over the parliament because he is a leader over there. Chances of conflicts between the parties leads the decline of the democratic principles of a country. बहुत important issues है बेटा। जो डीमेरिट्स अगर हम बात करते हैं इसमें, कि चांसेस अगेन देयर आर टू पार्टी सिस्टम में, बट जो पार्टी है वो किस तरीके से काम करेगी, दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण अगर मैं पाकिस्तान में लूँ, पाकिस्तान का, तो वहाँ पे जब पार्टीज़ ऑल्दो मोर देन टू पार्टी सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे पता है क्या है, द गवर्नमेंट्स जो भी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म की, सब एक दूसरे से बढ़कर करप्टेड। तो वहाँ पे लोगों को ये चुनना पड़ता है विच पार्टी इज़ लेस करप्टेड। यहाँ पे विच पार्टी इज़ विदाउट करप्शन नहीं है बेटा, विच पार्टी इज़ लेस करप्टेड। तो वहाँ पे उनको चुनना पड़ता है द बेटर वन और द बेटर वन यू कैन से। तो वहाँ पे अगर थर्ड पार्टी है तो भी वो वही काम कर रही है। तो ऐसे कंडीशंस में मोर एंड मोर अवेलेबिलिटी ऑफ द parties ultimately leads towards the good electoral competitions. Next, the most important is your multi-party system beta. Multi-party system, as the name suggests, there are more than two political parties are there, है ना। जैसे भारत में यूपीए, एनडीए, लेफ्ट फ्रंट की पार्टीज़ हैं। जैसे यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस रन बाय कांग्रेस एंड प्लस सपोर्ट जो उनके सहयोगी दल हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस बीजेपी और उनकी सहयोगी दल, और लेफ़्ट फ्रंट जो इसमें कोई कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज़ के पार्टीज़ हैं, मार्क्सिस्ट हैं, ये सब जुड़े हुए हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द मेरिट्स ऑफ दिस, द पीपल हैव मोर चॉइस टू वोट अकॉर्डिंग टू देयर विश। जैसे एक इसको मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ बात करना चाहती हूँ। हालांकि ये बहुत बड़ा स्केल है कि ये पार्टी सिस्टम, यही पार्टी सिस्टम में से हम इफ़ेक्टिव लोगों को चुनकर, एफिशिएंट लोगों को चुनकर हम अपने कहते हैं कि अपना जो एक्सपेक्टेशंस है वो सौंपते हैं, उनको हम गवर्नमेंट बनाने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। उसी तरीके से जैसे कि हम मार्केट में गए और मार्केट में फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सिर्फ कपड़े में दो ही चॉइस है, दो ही ब्रांड के चॉइस हैं, या हम कह सकते हैं दो ही स्टाइल के कपड़े हमारे पास। वहाँ पे मन में आता है यार इसके अलावा भी कहीं और कुछ और होना चाहिए था, है ना। तो एक ये ह्यूमन टेंडेंसी है दैट वी नीड मोर एंड मोर, और उसी मोर एंड मोर में वी हैव टू चूज़ द बेस्ट वन।
तो यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम में बेस्ट वन की सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है. सो पीपल हैव मोर चॉइस टू वोट अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आइडियाज़ एंड थॉट. कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी एक लिबरल डेमोक्रेसी बन जाती है. लोगों को अपने एक्सप्रेशंस, जो आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, वो कहने का पूरा अधिकार हो जाता है. देयर इज़ ए ग्रेटर इंडिविजुअल फ्रीडम एंड ऑल शेड्स ऑफ ओपिनियन कैन बी एक्सप्रेसिव. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट को उसके वो अच्छा काम करे और अच्छा काम करे, क्योंकि उसे पता है कि अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो अदर ऑपोजिशन में जो हैं वो क्रिटिसाइज़ ज़्यादा करेंगे. एडवोकेट रिप्रेजेंटेशंस टू वेरियस इंटरेस्ट इन द स्टेट इज़ accorded in multi-party system, and it is quite acceptable here. This also reduces the possibilities of cabinet dictatorship, and while the leaders are rule out the country. जो चांसेस है डिक्टेटरशिप की वो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर पावर शेयरिंग है. चलिए, ठीक है. देन नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट demerits. If we are talking about the demerits, children, chances of conflict very high. आप पूछोगे कैसे मैम, कन्फ्लिक्ट कैसे लीड करेगा? बिल्कुल, समटाइम्स जब कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उसमें जो, जैसे एक एग्जांपल दें कि एक ए पार्टी है, वो ए पार्टी किसी कारण से, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये इशू आता है कि जो वोट्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं. लोगों को समझ में नहीं आता, कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं, हम कौन सी पार्टी को दें, क्योंकि लोगों की सोच डिफरेंसेस हैं, डिफरेंट है. इंडिविजुअल डिफरेंसेस अल्टीमेटली लीड्स टुवर्ड्स द डिवीजन ऑफ द वोट्स, चिल्ड्रन, इन द सोसाइटी. ठीक है, एक सेक्शन है सोसाइटी का, उसे ये लगता है कि कोई भी सरकार हो, काम तो करना है, नहीं करना है, हमारी सिचुएशन वैसे की वैसे ही रहेगी, तो भैया हम किसी को भी दे दें. उसी घर में से 4 लोग ए पार्टी को देंगे, 3 लोग बी पार्टी को देंगे, 1 लोग सी पार्टी को. इट मीन्स दैट द वोट्स बिकम डिवाइडेड, यू कैन से. वो डिवाइड हो जाता है, कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं. मेजॉरिटी, इसका सीधा असर किसके ऊपर पड़ता है कि कोई भी पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत लेके सरकार नहीं बना पाती. उसके लिए उसको अलायंसेस या उसको गठबंधन, उसको गठजोड़, मिली जुली सरकार, कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसको बनानी पड़ती है. और कोलिशन गवर्नमेंट में अगर किसी रीजनल पार्टी या छोटी पार्टी ने सिर्फ अपना ये कह दिया कि हमारे मिनिस्टर को कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए, नहीं तो हम आपसे सपोर्ट खींच लेंगे, तो ऐसे कंडीशन में वो सरकार गिर जाती है और लोगों की जो उम्मीदें होती हैं उस पर्टिकुलर सरकार से वो धाराशायी हो जाती है. तो उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल अस्थिरता, यानी कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी. और अल्टीमेटली यही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लीड करता है टुवर्ड्स द इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी इन अ कंट्री, चिल्ड्रन. ऐसा कई बार भारत के साथ हुआ है. एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट जो फर्स्ट पीएम हमारे मनमोहन सिंह जी का जो पहला कार्यकाल, जो फर्स्ट टेन्योर था, पीएम मनमोहन सिंह हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस के, तो वहाँ पे यूपीए गवर्नमेंट को इस तरह के कई चैलेंजेस से गुजरना पड़ा था. और यही होता है बेटा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अल्टीमेटली कॉजेज इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, और कहीं ना कहीं जो वो पार्टी है वो ट्रस्ट को देती है फ्रॉम द साइड ऑफ द जनता, from the side of the citizens, children. ये सबसे बड़ा डीमेरिट है. और अब हम बात करेंगे पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल पार्टीज, चिल्ड्रन. दिस इज द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर. स्टूडेंट्स, सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ योर today's class, today's lecture. Students, if we are talking about the popular participation in political parties, एक बहुत ही परसेप्शन है that
आज की पॉलिटिकल पार्टीज़ को कई तरह की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? द सिटीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए डिफरेंट है। अनपॉपुलैरिटी एग्जिस्ट हो रही है अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री। ये कुछ सिनारियोज़, कुछ सर्वेज़ हुए, उस सर्वे के आधार पे अगर ये बात कही गई कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं दे डू नॉट एंजॉय मच ट्रस्ट अमंग द पीपल, स्पेशली इन द सदर्न एशियन कंट्री। तो जो प्रोपोर्शन था, जो कहते हैं कि हाँ हमें विश्वास है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, कम ज़्यादा कह नहीं सकते, ये चीज़ें अल्टीमेटली लीड करता है बाय सेइंग दैट द पॉलिटिकल पार्टीज़ आर वन ऑफ दोज लेस और लीस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम कहते हैं ना कि एज अ लेमैन सरकार ये काम करिए, हमें विश्वास नहीं है, ये पार्टी ये काम करे, हमें विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हमारी सोच अलग है, हमारे थॉट्स अलग हैं। हम हो सकता है जो दूसरे के लिए वो पार्टी पॉलिटिक्स इम्पॉर्टेंट हो, वो हमारे लिए ना हो, है ना। तो यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस अल्टीमेटली लीड करता है कि हम एक तरफ ये कहते हैं द लीस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। बट अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटीज़ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर क्वाइट गुड इन इंडिया। Some are saying that they are the members of the political parties, और ख़ासकर पिछले 30 सालों में जो प्रोपोर्शन ये बड़ा है, जो कहते हैं कि दे आर द मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, हम इस पॉलिटिकल पार्टीज़ के सदस्य हैं या सदस्यता बढ़ती जा रही है। ठीक है, पहले होता था क्लोज टू पार्टी, हम इससे जुड़े हुए हैं, नहीं बेटा, अब हो रहा है सदस्यता। और यही जो क्राइसिस है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये कि अनपॉपुलैरिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। ऐसा हो क्यों रहा है? द रीजंस बिहाइंड कि अनपॉपुलैरिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनी सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर एक्स हैं ऑफ एक बहुत बड़ी पार्टी के, अगर उनके अगर पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को लोग पसंद ना करें तो बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी वो अनपॉपुलर हो जाए। कई बार क्या होता है, जो वहाँ का लीडर होता है वही अनपॉपुलर है, लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा क्राइसिस है, सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर हम सिटीजन्स एंड डिफरेंसेस की बात करें, बिल्कुल सही है। मैंने कहा कि एक पार्टी को लेके जो मेरे थॉट्स हैं, हो सकता है मेरे पॉजिटिव थॉट्स, हो सकता है वो दूसरे के लिए नेगेटिव थॉट्स हों। ये भी एक सबसे बड़ा कारण है पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्राइसिस का। और सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है कि बेटा, मैं ये नहीं कहती कि 100% ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स आर करप्टेड, बट येस जो करप्शन रेट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम कहें कि हमारे नॉर्मल सोसाइटी में इतना करप्शन नहीं होगा जितना कि इस इंस्टीट्यूशन में होगा। वजह क्या है? वजह है कि द लीडर्स आर अनएथिकल, दे आर सेल्फ सेंट्रिक चिल्ड्रन। जहाँ पे उनको सोसाइटल सेंट्रिक होना चाहिए था, वहाँ पे दे आर सेल्फ सेंट्रिक। वो सोचते हैं कि जैसे ही हमें सीट, मतलब एक कहते हैं ना कि सीट हमें चाहिए, और उसी सीट पे वो, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि वो सीट उनको दी किसने है। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि 4 साल जो हाथ जोड़ कर जाते हैं वो 4 साल के बाद अपना चेहरा दोबारा दिखाते हैं। एब्सेंस ऑफ ग्रास रूट लेवल लीडर्स चिल्ड्रन, दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। हवाई में लोग जीना चाहता है, खासकर द रूलर्स, वो ज़मीन से जुड़कर काम करने वाले लोगों की कमी हो रही है। लैक ऑफ कॉन्टीन्यूअस कॉन्टैक्ट विद पीपल, जैसे मैंने अभी कहा, स्टार्टिंग ऑफ योर
election campaign and the last of your again the election campaign of the second term, वो क्या कर देते हैं वहाँ पे, तभी आपको वो पॉलिटिकल लीडर्स दिखाई देंगे. देन इट इज़ व्हाट वी कॉल्ड इट एज द पॉलिटिकल डिफेक्शन. चिल्ड्रन, पॉलिटिकल डिफेक्शन का मतलब होता है मूविंग ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर फॉर सम पर्सनल बेनिफिट्स इज़ व्हाट वी कॉल्ड इट एज द पॉलिटिकल डिफेक्शन. दल बदलू, दल बदल. क्लियर कट आइडियोलॉजीज़. Ideologies are not sound, ideologies are not clear for the leaders children. उन्हें ये नहीं पता कि उनके सिद्धांत क्या है, उनके प्रिंसिपल क्या है, उनका बेस क्या है. Still the political leaders are not knowing. And the last is आपराधिक मामले पॉलिटिक्स के बढ़ गए हैं. क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मसल्स, मनी पावर, ये सब ऐसे क्राइसिस है जो कि अल्टीमेटली हम एज अ सिटीजन हमें अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये कहने पे मजबूर कर देता है कि हमें उन पर विश्वास नहीं है. बट स्टिल स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी कैन नॉट रन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट रन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़. But political parties should do their duties according to the moral values, the ethics जो कि कहा गया है. और यही पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारा वो आधार जो बेस है डेमोक्रेसी का, वो अल्टीमेटली लीड करता है कि ठीक है अविश्वास ही सही, पर फिर भी ये राजनीतिक दल किसके लिए बनाए गए हैं? जनता के लिए. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, बाय दिस नोशन आई वुड लाइक टू से दैट आपके नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, दैट टॉपिक इज़ कंप्राइजेज विद द नेशनल पार्टीज़ एंड रीजनल पार्टीज़ और इनका फॉर्मेशन. और 3 टॉपिक्स, 3 क्लासेस हमारी और होंगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस, बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे. बट मैं आपको जो PDF फाइल्स जो मैं आपको दूंगी उसमें बेटा क्वेश्चंस आप लोग करिएगा, वॉच द वीडियोस, रिवाइज द टॉपिक, डू योर वर्क, एंड बाय सेइंग थैंक यू वेरी मच.